مقامی مدرسہ عزیزیہ بہار شریف میں حج تربیتی کیمپ کا انعقاد کیا گیا۔ اس دوران بتایا گیا کہ حج مذہب اسلام کا ایک اہم رکن اور عظیم عبادت ہے۔ اس میں بڑی رقم بھی خرچ ہوتی ہے اور تقریباً 1.5 ماہ کا وقت بھی لگتا ہے۔ نالندہ ضلع سے اس سال 81 حضرات حج کے لیے مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ جانے والے ہیں، جن میں 48 مرد اور 33 خواتین شامل ہیں۔ پروگرام زیر صدارت جناب الحاج سید شاہ سیف الدین فردوسی صاحب صدر صغرا وقف اسٹیٹ بہار شریف و سجادہ نشین خانقاہ معظم بہار شریف کے ہوا، جبکہ زیر اہتمام صغرا وقف اسٹیٹ و زیر انتظام مدرسہ عزیزیہ منعقد ہوا۔ پروگرام کا آغاز حافظ عمران حسانی صاحب مدرس مدرسہ عزیزیہ کے تلاوت کلام پاک سے ہوا۔ نظامت مولانا محمد شاکر قاسمی انچارج پرنسپل مدرسہ عزیزیہ بہار شریف نے کی۔ مہمان خصوصی کی حیثیت سے الحاج مفتی ثناء الہدیٰ قاسمی نائب ناظم امارت شریعہ بہار اڑیسہ جھارکھنڈ نے حج کے فرائض، واجبات، سنن ابن و مستحبات اور ممنوعات حج و احرام کو تفصیل سے دلنشیں انداز میں بیان کیا۔ اور یہاں دونوں نماز ملا کر کے پڑھے، عشاء کے وقت میں پڑھے گا پہلے مغرب پھر عشاء، اور یہاں نماز کا ہونا ضروری نہیں۔ یہاں آپ الگ بھی پڑھ رہے ہیں تو بھی آپ کو ملا کر کے بھی پڑھنا ہے، مغرب پڑھ لیجیے پھر عرفہ میں مسجد کے امام کے ساتھ پڑھیں تب ملا کر پڑھیں، امام پڑھیں گے الگ الگ پڑھیں۔ اور آپ ایسے سمجھ لیجیے کہ جیسے امتحان ہو رہا ہے سرگزیہ میں، کسی بھی اسکول میں امتحان ہو رہا ہے، یا پھر اس کو اور آسان ہوگا، آپ ایسے سمجھ لیجیے کہ بچے جاتے ہیں کلاس میں، ایک لڑکا ہے جو ہر وقت حاضر رہتا ہے، 75% اس کی فیصد حاضری بھی ہے، لیکن وہ دل سے حاضر نہیں ہو رہا ہے، وہ بس حاضر ہو رہا ہے، توجہ کہیں اور ہے۔ امتحان ہوتا ہے، ظاہر سی بات ہے کہ اس کا رزلٹ اچھا نہیں آئے گا، تو صرف حاضر ہونے سے کام نہیں چلتا، جب تک کہ دل کی توجہ آپ کی پڑھائی کی طرف نہیں ہوگی، اچھا امتحان نہیں دیجیے گا، آپ پاس نہیں ہوئیے گا۔ تو صرف حج کر لینے سے، چلے جانے سے حاضری بن جائے گی، لیکن اس پر اللہ کی توجہ، اللہ کی نظر عنایت و مہربانی، وہ سب نعمتیں ہیں وہ آپ حاصل نہیں۔ محمود جماعت رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مکتوبات میں ایک بڑی پیاری بات لکھی ہے، حضرت نے تفصیل سے آپ کو ذکر کرنا ہے، جیسے ہم بتاتے ہیں نماز کیسے پڑھنی ہے، کیسے رکوع کرنا ہے، کہاں پر کیا پڑھنا ہے، تو نماز کی قبول ہونے کے لیے یہ ضروری آپ کو پورے ارکان کے بارے میں ہونا چاہیے۔ ہم اب جو بات آپ کو بتا رہے ہیں وہ روحانی بات بتا رہے ہیں، اور جہاں جہاں پر ہم کو دقتیں آئی ہیں اس کے بارے میں بھی آپ کو ذکر کریں گے۔ محمود جہاں رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ خواجہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص حج کرنے کے لیے آیا، انہوں نے کہا ایک شخص آئے حج کے بعد، میں نے حج کر لیا، تو حضرت نے پوچھا کہ اچھا ماشاء اللہ آپ نے حج کیا، بڑی خوشی کی بات ہے، بیٹا اچھا یہ بتاؤ کہ جس وقت تم نے احرام باندھا، اور سنیے جس وقت تم نے احرام باندھا، اپنے کپڑے تبدیل کیے، صرف تم نے اپنے کپڑے تبدیل کیے یا اپنی عادتوں کو بھی بدلا، اپنے سوچ کو بھی بدلا، اپنے خیالات کو بھی بدلا کہ نہیں بدلا؟ اس طور پر حج کے لیے گئے کہ نہیں گئے، کسی کپڑے بدل لیے؟ تو بولے حضرت ایسا تو نہیں ہوا۔ اچھا یہ بتاؤ بیٹا کہ جب تم نے ایک منزل سے دوسرے منزل کی طرف سفر کیا تو کیا یہ صرف سفر پیدل ہو یا پانی والی جہاز کی جیسے بھی ہو، سواری کے ذریعے ہو، تو اللہ کی بارگاہ میں بھی کوئی قدم رکھا کہ نہیں رکھا کہ اس کی بارگاہ کی طرف جانا ہے، کہ صرف سفر کرتے چلے گئے؟ تو بولا حضرت اس نیت سے تو سفر نہیں ہو سکا۔ تو کہا اچھا تم خانہ کعبہ تک پہنچے تو خالی گھر دیکھا کہ زمان کعبہ کو بھی دیکھا، کعبے کے جاؤ جلال اس کا نظارہ بھی کیا کہ نہیں کیا؟ کہا کہ حضرت ایسا تو نہیں ہوا۔ فرمایا کہ اچھا خالی کعبہ دیکھا کہ کعبے والے سے بھی ملاقات ہوئی، اس سے بھی شکل زیارت ہوئی، اس کا بھی دیدار جمال ہوا کہ نہیں ہوا؟ حضرت ایسا تو نہیں ہوا۔ کہا جب صفا اور مروہ کی چکر لگائے تو صفا کا مقام مرتبہ جو قرآن پاک میں آیا ہے، صفا اور مروہ من شعائر اللہ، یہ سمجھا کہ تم نے نہیں سمجھا کہ صفا اور مروہ جو ہے اللہ کی
निशानियों में से एक निशानी है, इसकी क्या अजमत है, क्या अजर व मंजिलत है, इसको तुमने जाना कि नहीं करना? चले गए बोला इस तरह चक्कर नहीं लगाया। अच्छा बेटा ये बताओ कि जब तुम कुर्बानी कर रहे थे तो कुर्बानगाह में सिर्फ जानवर को तुमने छुरी चलाई या अपने नफ्स में भी तुमने छुरी चलाई, अपने ख्वाहिशात को भी छुरी चलाई कि नहीं चलाई? सिर्फ जानवर को धोखा कर दिया। तुम इस तरह से तुमने जानवर को धोखा नहीं किया। क्या बेटा ये बताओ कि जब तुम नुकसान हो रहे थे तमाम वदा के बाद, तो तुम अपने गुनाहों की माफी और शर्मिंदगी के एहसास के साथ जुदा हुए कि नहीं? तो बेटा हजरत इस दौर को तो नहीं हो सका, तो कहा हजरत आदत जुदायत है कि बेटा दोबारा फिर जाओ हज के लिए, और जिस तरह से मैंने बताया है इस तरह की सोच और ख्यालात को लेकर के जाओ। तो असल चीज देखिए यही है कि आज हज तरबियती कैंप है, तो इस कैंप में क्या बताया जा रहा है लोगों को? अल्हम्दुलिल्लाह आज 28 अप्रैल 2024 को वैसे हाजियों के लिए हज तरबियती प्रोग्राम रखा गया है जो हज 2024 के सफ़र पर नालंदा ज़िला से जा रहे हैं। इसमें कुल 81 आजमीन हज व आजमात हज हैं, जिसमें से 38 जो है वो मर्द हैं और 33 जो है वो 48 मर्द हैं और 33 औरतें हैं। और हज के सिलसिले में प्रोग्राम ट्रेनिंग दी जा रही है। मैं मोहम्मद शौकत अली खातिबुल हुज्जाज व नालंदा जिला हज ट्रेनर हूँ। मैं पिछले फरवरी 2024 में मैं दिल्ली से हज ट्रेनिंग लेकर के आया हूँ, और मेरे साथ में मुफ्ती सनाउल हुदा कासमी साहब जो नायब नाज़िम हमासरिया बिहार उड़ीसा हैं, वो भी तरबियती दे रहे हैं। मैंने भी दिया। मैंने सफ़र हज पे कैसे क्या सामान लेकर के जाना है, वहाँ के क्या क्या चीज़ मना है या किस चीज़ से परहेज़ करना है, क्या करना है क्या नहीं करना है, फ़्लाइट से संबंधित जानकारी दी मैंने। और एम्बार्केशन, इमिग्रेशन, कस्टम और डिसास्टर मैनेजमेंट के बारे में सारे हाजियों को मैंने बताया कि आपको वहाँ जो 44 या 45 दिनों का सफ़र है मक्का और मदीना का, वहाँ के सफ़र को किस तरह से आप करेंगे, और हज के जो अय्याम हैं 5 दिन, वो 5 दिन किस तरह से आपको हज करना है, उम्रा किस तरह से करना है। उम्रा को हमने करने में जो एहराम बांधा जाता है उसके बारे में हमने एहराम को बांध करके उनको डेमो दिखाया। फिर मशायर में जो जगह है मीना, मुज़दलिफ़ा, अरफात, उसके बारे में भी जानकारी दी। और मीना में किस तरीके से रहना है, रहने के लिए रहाइश कैसे होगी, वहाँ के सऊदी गवर्नमेंट से मेट्रो की क्या व्यवस्था होगी, खाने का क्या नज़्म होगा, दवाइयों का क्या नज़्म होगा, खेमे किस तरह से रहेगा, उसके लिए भी मैंने डेमो दिया कि आप जहाँ पर भी रहें वहाँ एक पोल लगा रहेगा, पोल पे मकतब नंबर लिखा हुआ होगा, उसके ऊपर रोड नंबर लिखा होगा। तो आप इसका फ़ोटो ज़रूर ले लें ताकि आप कहीं भी जाएं तो आप उस पोल के मदद से आपको आसानी से आपको अपना खेमा मिल जाए और आपको परेशानी नहीं। आने का सिलसिला कब से शुरू हुआ? ये डिफरेंट एम्बार्केशन पॉइंट से अलग अलग है, जैसे दिल्ली, कोलकाता, लखनऊ, हैदराबाद, ये सब 9 तारीख से 9 मई से शुरू होने का इम्कान है इंशाअल्लाह ताला। और जैसे हैदराबाद हो गया, ये मुंबई हो गया, बेंगलुरु हो गया, यहाँ लगभग हमें लग रहा है कि ये 26 तारीख से जाने का इम्कान है। गया एम्बार्केशन पॉइंट के अभी डेट शेड्यूल नहीं आया है, जैसे ही आ जाएगा हज कमेटी ऑफ इंडिया के ज़रिए उनके वेबसाइट पे, या हमें भी आता है मेरे इन्फॉर्मेशन है हज ट्रेनर, तो मैं जो है इंशाअल्लाह सारे हाजियों को उसका इन्फॉर्म कर दूँगा। आज का प्रोग्राम में ही हमने लोगों को बताया है और इससे बहुत मुस्तफ़ीद हुए और फ़ायदा हासिल किए हैं, और इंशाअल्लाह उम्मीद है कि इनका हज बेहतर से बेहतर होगा। हज कमेटी ऑफ इंडिया और बिहार रियासती हज कमेटी के निर्देश पे बिहार शरीफ में ख़ास करके मदरसा अज़ीज़िया के कैंपस में नालंदा ज़िले के 81 आज़मीन हज के लिए आज तरबियती कैंप का इनेकाद किया गया। और इस कैंप में इमारत शरिया के जो ट्रेनर हैं जनाब सनाउल्लाह साहब कासमी साहब वो तशरीफ़ फरमा थे, जनाब शौकत साहब वो थे। और आज के इस तरबियती कैंप की सदारत शुक्रा बख्श स्टेट के सदर और खानका मुअज़्ज़म के सज्जादा नशीं जनाब सैफुद्दीन
फिरदौसी साहब की सदारत में ये इनकाद किया गया। और इस तरबती कैंप में तमाम तरीके की वैसी चीज़ें जो एक आज़मीन हज के लिए ज़रूरी है उसको मतलब जो है यहाँ पर बहुत सिलसिलेवार तरीके से बताया गया। और इन्होंने पूरे मुस्तैदी के साथ में उन चीज़ों को सुना समझा। यहाँ तक कि जनाब शौकत साहब जो यहीं के मुकामी हैं और ट्रेनर हैं और लगातार सदर वक्फ स्टेट के ताउन से मदरसा अज़ीज़िया में जो ये प्रोग्राम होता रहता है उसमें एज ए ट्रेनर शिरकत फरमाते हैं। उन्होंने डेमोस्ट्रेशन के साथ कि जब आप जाएंगे तो मेकात के बाद में जो एहराम बांधना है वो एहराम कैसे बांधेंगे उसको उन्होंने डेमोस्ट्रेट कर करके दिखाया। और जब आप खाने काबा का तवाफ़ करते हैं तो तवाफ़ में किस तरीके से चलना है और जब आप सही करते हैं सफ़ा मरवा का तो उसके तरीक़ेकार क्या होंगे। तो उसमें बहुत ही और जो है आप पॉइंट वाइज चीज़ों को रखा गया। और जो दुआ फरमाई हज़रत सैफुद्दीन फिरदौसी साहब ने और जो उन्होंने लगातार जो उनके हज के और उनके उम्रा के जो तजुर्बात रहे हैं उस चीज़ों के बारे में उन्होंने बताया। तो हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह ने इन तमाम 81 लोगों को अपने घर के अपने उसकी सादत का नसीब फरमाया है। और हम दुआगो हैं कि उनके हज को अल्लाह कबूल भी फरमाए। इसलिए कि हम लोग हर लोग दुआ करते हैं कि बुला तो लेता है लेकिन अल्लाह उस हज को कबूल करे। और हज के बाद जो चीज़ें मतलब एक ज़िंदगी में आनी चाहिए वो भी ज़िंदगी में उन लोगों के लिए भी ज़िंदगी में शामिल हो जाए। तो ये है। और हम लोग अभी जो पूरी दुनिया में जो हालात हैं और जो अमन अमान की उसकी दुआ की गई। जो हिंदुस्तान में जो हालात पैदा हो रहे हैं उसके लिए दुआ वो है। और ख़ास करके नालंदा ज़िले के जो लोग हैं उन तमाम लोगों के लिए अमन शांति की दुआ, तरक्की की दुआ और ईमान पे चलने की दुआ की गई है। और हम उम्मीद करते हैं कि जब हज से लौट करके आएंगे लोग तो अपने इस्लामी ज़िंदगी के हिसाब से अपनी ज़िंदगी को वो गुजार सकेंगे। और अल्लाह का शुक्र है, बड़ा करम है कि हर बार जो बिहार का कोटा होता था उसमें कम ही लोग जा पाते थे। लेकिन इन तमाम तरीके की दिक्कतों यहाँ तक के केंद्र सरकार है, हुकूमत बिहार है, हुकूमत हिंद है, उसने सब्सिडी को भी कम किया लेकिन जाने वाले लोगों की तादाद कम नहीं हुई है। इसका मतलब ये है कि लोगों में अब जज्बा और पैदा हुआ है और वो लोग भी जा रहे हैं। जब पहले होता था कि जब रिटायर हो गए या और बहुत सारी चीज़ों के बाद में सबकदोशी हो गई तो वो हज के लिए जाते थे। लेकिन अभी जो एक सिलसिला शुरू हुआ है कि नौजवान भी जा रहे हैं और इस तरीके के लोग जा रहे हैं कि मतलब हज अच्छे से कर सके। दूसरी एक बड़ी बात है कि आदर्श आचार संहिता लागू होने पर भी ज़िला प्रशासन ने पूरे तौर से शराइत के साथ में इस ट्रेनिंग करने की मंजूरी दी। और उन्होंने अपने ऑफिसर को, दंडाधिकारी को भी डिप्यूट किया, पुलिस को भी डिप्यूट किया। और जो मुकर्ररा वक्त था और जो इलेक्शन कमीशन के जो शराइत थे उन तमाम शराइतों को ध्यान में रख करके इस ट्रेनिंग प्रोग्राम को पूरा किया गया। और इसके रूह रवा के तौर पे जनाब शाकिर साहब जो यहाँ के प्रिंसिपल हैं, इंचार्ज प्रिंसिपल हैं, उनकी रहनुमाई में देख रेख में सारे स्टाफ इसमें और ख़ास करके हेल्थ डिपार्टमेंट भी जो बिहार सरकार का महकमा सेहत है वो 2 तारीख को एक तमाम लोगों को जो सेहत के लिए जो सर्टिफिकेट इशू किया जाता है, जो टीकाकरण किया जाता है, उसका भी इनेकाद होगा। और इंशाअल्लाह हम समझते हैं कि तमाम 81 लोग जिन लोगों ने इरादा किया है और तमाम तरीके की फॉर्मेलिटीज़ पूरा किया है, अल्लाह उनको अपने खाने काबा की ज़ियारत, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े मुबारक की ज़ियारत का सादत हासिल करें और वहाँ से लौटें। उनकी ज़िंदगी और तमाम माने जो है चीज़ों की बेहतरी के लिए दुआ करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया जी। आपके मदरसा अजीज़िया में हज तरबियती कैम्प था, आज लोगों को बताया गया, हुज्जाज इकराम को, तो इस दौरान क्या क्या चीज़ें बताई गई तरबियत में?
مذہب اسلام کا اہم ترین رکن اور عبادت ہے۔ پوری زندگی میں ایک مرتبہ حج ذمے میں فرض ہوتا ہے صاحب استطاعت مسلمان عاقل بالغ مرد اور عورت پر، تو ضروری ہے کہ حج کے تمام طریقے سے واقف اور آشنا ہو کر کے جائیں۔ تو مفتی ثناء الہدیٰ قاسمی صاحب جو ماہر حج ٹرینر ہیں، نائب ناظم ہیں ہمارا شریعہ بہار اڑیسہ جھارکھنڈ پھلواری شریف کے، وہ تشریف فرما تھے۔ انہوں نے حج کے ادائیگی کے مکمل طریقے فرائض واجبات سنن آداب مستحبات بتائیں اور حرمین شریفین کے زیارت کے طریقے وہ بتائیں، اور جس کو عازمین و عازمات حج نے انتہائی پرسکون انداز میں پوری دل جمعی کے ساتھ سماعت فرمایا، اور الحمدللہ یہ حج تربیتی پروگرام زیر اہتمام صغرا وقف اسٹیٹ و زیر انتظام مدرسہ عزیزیہ منعقد ہوا، اور زیر صدارت جناب حضور الحاج سید شاہ سیف الدین فردوسی صاحب صدر صغرا وقف اسٹیٹ اور سجادہ نشین خانقاہ معظم بہار شریف گوناگون مصروفیت کے باوجود تشریف فرما تھے، اور ان کی قیادت میں ان کی صدارت میں اور جناب سید مختار الحق صاحب جو متولی صغرا وقف اسٹیٹ ہیں اور ہمارے مدرسہ عزیزیہ کے سیکریٹری ہیں، ان کی رہنمائی میں اور جناب چھوٹن بہاری صاحب نائب اول کی رہنمائی میں یہ پروگرام انتہائی کامیاب اور کامران رہا، اور جناب سندیپ بھارتی جی مہاتما اقلیتی فلاح میں ان کا بھی مشکور ہوں کہ انہوں نے رہنمائی بھی فرمائی اور حالات کے پیش نظر انہوں نے اجازت بھی پرشاسن سے لی۔ کیا تعریف ہوئی آپ کو؟ یہ محمد شاکر قاسمی انچارج پرنسپل مدرسہ عزیزیہ بہار شریف۔ ہاں بتائیے آج کے پروگرام میں کیا؟ پروگرام ماشاء اللہ بہت ہی اچھا رہا۔ یہی دعا ہے کہ دن بدن بڑھتے چلے جائے۔ ابھی 81 حاجی لوگ جا رہے ہیں، آگے سال انشاءاللہ 181 ہو جائے، اور ماننیے میرے متولی صاحب پرنسپل صاحب اتنا بولی مجھے ملنے لے کر بتا رہے، چند شبدوں کے ساتھ میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ کیا تمام حاجیوں کی دعا قبول ہو اور صحت تندرستی کے ساتھ واپس لوٹیں، سب کی مرادیں پوری۔ میرا نام سید زید احمد چھوٹن بہاری شغرا